میں ساتھ دیتی ہیں آج عریض ندیم. تو پروگرام کا باقاعدہ سٹارٹ کرتی ہیں عریض، اور ہم آپ کو ایک اہم ٹاپک پہ ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ. ایز یو نو کہ آج ہم جس ٹاپک پہ ناظرین ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بسنت، جو کہ ہر زبان زد عام ہے. بالکل بسنت مناتے ہیں یا حکومت نے جو پرمیشن دی ہے کیا یہ ٹھیک ہے، اس پہ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور اپنے جو ریویوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے عالیہ ہم اپنے ویورز کو یہ بتاتے چلیں کہ ناظرین کرام اگر پتنگ بازی کو دیکھا جائے تو ایک خونی کھیل ہے. بالکل ایسے بہت سے آپ کو پتہ ہے کہ ماؤں کے بچے جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، گھروں کے جو باغ ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ماؤں کے لگتے جگر اس دنیا سے جاتے ہیں صرف اس خونی کھیل کی وجہ سے. اور عالیہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے آپ سے ڈیٹس اناؤنس کرنے سے پہلے ہمارے معاشرے کے لیے پتنگ بازی کو بڑا وہ ایک کریک ڈاؤن کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا تھا. بڑا خونی کھیل کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ خونی کھیل ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو ابھی حکومت کی جانب سے اس کی ڈیٹس اناؤنس کر دی گئی ہیں، وہ بھی 3 دن. اور عریض آپ مجھے بتائیں کہ کچھ سال پہلے راؤنڈ اباؤٹ سننے میں آیا کہ یہ 20 سال بعد ریپیٹ ہوئی ہے یہ جو بسنت ہے، اور وہ ایک دن کی ہوتی تھی بسنت، اور اس میں بھی بہت سارے لوگوں کا بہت جانی نقصانات ہوتے تھے. اور انہوں نے باقاعدہ 3 دن 6, 7, 8 فروری اسپیسیفائڈ کر دی فکس کر دی ہوئی ہے کہ یہ فیسٹیول جو ہے وہ ان ڈیٹوں پہ ہوگا. اور آپ کے کیا ویوز ہیں اس کے ذرا؟ اچھا، سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، بالکل ایسے ہے. کچھ بچے حادثے کا شکار ہوتے ہیں، کچھ جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں. لوگوں میں اتنا کو زیادہ آپ کو پتہ ہے پتنگ کے حوالے سے اتنا کو زیادہ کریز تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی چھتیں پھلانگتے ہوئے بھی حادثے کا شکار ہو جاتے تھے. اب عوام کے اندر سے یہ جو کہہ لیں کہ کریز تھا کم ہوا تھا حکومت کی جانب سے. جب پولیس ان ایکشن آئی تھی، کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوئے تھے، بچوں کو بھی پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی تھی، گارڈینز کو پکڑ رہے تھے گھروں میں آگے چھوٹے بچوں کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی تھی نارملی کائٹ اڑانے سے. تو ان دا شارٹ آف ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے جو ہے نا وہ ہوا دی ہے، چنگاری لگا دی ہے اگین لوگوں کے اندر. اب یہ 3 دن کے بعد اگر کوئی بھی پتنگ بازی کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، پرچے ہوں گے، پکڑا جائے گا یا پھر وہ موتیں ہوگی. اچھا، ابھی ریسنٹلی میں آپ سے یہ چیزیں ڈسکس کرنے لگی ہوں کہ ابھی اسلام آباد میں ٹریفک وارڈن ابھی یہ بسنت سٹارٹ نہیں ہوئی، ٹریفک وارڈن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس جا رہا تھا کہ ڈور لگنے سے اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا. تو عریض ابھی یہ سٹارٹ نہیں ہوئی تو آگے چل کے کیا ہوگا اگر 3 دن یہ فیسٹیول رہے گا تو ڈیفینیٹلی جس طرح ناظرین آپ کو عالیہ نے بتایا کہ کل یہ انسیڈنٹ رونما ہوا تھا کہ ٹریفک وارڈن اپنے گھر جاتے ہوئے یہ پتنگ بازی کے باعث ڈور لگی، ناک پہ ان کا وہ کٹ گیا اور وہ حادثے کا شکار ہوئے. بالکل حکومت نے بہت ہی فاصلے اقدامات کیے ہیں. دیکھا جائے تو سیفٹی راڈز ہو گئے ہیں، کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا. اگر کوئی باہر نہیں نکلتا تو آپ یار دیکھو عالیہ کے جو مزدور طبقہ ہے جن کا ڈیلی بیسس کا کام ہے، ایگزیکٹلی یہ ایک بڑا ہم بسنت کو تو ڈسکس کر رہے ہیں نا، اس کے اندر یہ بھی ایک چیز بڑی کامنلی ہائلائٹڈ ہے کہ اگر مزدور طبقہ 3 دن گھر بیٹھتا ہے تو ان کا چولہا کیسے جلے گا؟ یہ بتاؤ کہ حکومت نے یہ 3 دن رکھ دی ہیں، باہر کوئی نہیں نکلے گا، چھوٹی گاڑیوں پہ کوئی نقصانات نہیں ہوں گے. اب ٹریفک وارڈن خود ایک حادثے کا شکار ہوا ہے، حکومت کے سامنے ٹائم سے پہلے ایک انسیڈنٹ رونما ہو چکا ہے. اور یہ ہمارا پاکستان ہے، یہاں کوئی بھی رول ریگولیشن کے ساتھ نہیں چلتا. انہوں نے کہا ہے کہ 3 دن بائک نہیں چلے گی، رکشہ نہیں چلے گا، مزدور طبقہ باہر نہیں آئے گا، تو وہ لوگوں کو چولہا کیسے جلے گا؟ وہ کیسے یہ چیزوں کو سروائیو کریں گے؟ مطلب 70% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ To be very honest, I'm telling you کہ it's my first, یہ بسنت فیسٹیول ہے میرا. اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا سنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیسیکلی ایک سکھوں کا تہوار ہے. یہ بالکل سکھوں کا ہے، ہمارے مسلمانوں کا یہ تہوار نہیں ہے، یہ سکھوں کا تہوار ہے. اور ہر وہ چیز جو کہ انڈیا اور ہندوستان اور سکھوں کی فیسٹیول ہے وہ ہمارے پاکستان والے بڑھ چڑھ کر اس کو منایا جاتا ہے. اور خاص طور پہ لاہور والے تو بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اتنی مہنگی چھتیں رینٹ پہ لیتے ہیں، اور اتنا میں کیا بتاؤں آپ کو. ابھی بھی جو لوگوں نے چھتیں رینٹس پہ لی ہیں ان کی کوسٹ جو ہے اگر دیکھا جائے اتنی کوسٹ نہیں ہے، لاکھوں کے حساب سے، لاکھوں کے 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اگر ہمارے معاشرے میں ہماری پنجاب حکومت کی جانب سے جس طرح دیکھا جائے کہ جب سے آئی ہیں
महंगाई की वजह से भी लोग रोना रोते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये 4-4, 6-6 लाख, 5-5 लाख की छतें भी रेंट पे ले रहे हैं। ये कैसे है? देखा मुझे ये जाए नहीं समझ आता। ये अचानक से हमारे वजीर आला मरीम नवाज साहिबा को ये क्या सूझी कि ये बसंत का फेस्टिवल मनाना चाहिए, और भी उनके पास बहुत सारे काम हैं, जैसे कि पूरा लाहौर मतलब रिनोवेट हो रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, वो इसी को लेकर क्यों बैठ गई है कि ये फेस्टिवल होना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो इमरान खान के दौर में जिस तरह उन्होंने हमारे कल्चरल फेस्टिवल को बड़ा प्रमोट किया, शलवार कमीज को, हाँ, और बिल्कुल। उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये भी माइट भी हो सकता है कि इन्होंने उस चीज़ को देखते हुए, चलो आवाम में फन होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि लोग छतों पे जाके अपनी अपनी पतंगबाजी करें, वो गुड्डी चढ़ाएं और वो सारी सीन्स हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हादसा रूनमा होते हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट एक खुली जगह अलॉट कर देती है, वहाँ पे जाए, वहाँ पे आपको एक एक्चुअली मैं अकेले क्या कर सकती हूँ, अपना अपना एक सोच ओपिनियन बंदा दे सकता है। मैं भी ये चाह रही हूँ कि अगर उन्होंने इतने रूल रेगुलेशंस बना दिए हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफिक जगह भी बनानी चाहिए। बिल्कुल, कि कुछ जैसा ग्राउंड है, कुछ ऐसी जगह है कि जो लोग बहुत शौकीन हैं गुड्डी उड़ाने के, तो वो वहाँ जाएं और अपना एक पूरा दिन स्पेंड करके वहाँ आ जाएं, ना कि लोगों को तंग हो और अपने घरों की छतों पे जाएं और दूसरों का नुकसान हो। तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? आई एग्री विद यू कि इस तरह ही होना चाहिए, बिकॉज के हमारी गवर्नमेंट, आई डोंट नो कि उनके माइंड में क्या आया। कुछ लोग बड़े खुश हैं कि हो रही है यार, हो रही है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि जिन घरों के घर उजड़े हैं इन पतंगबाजों की वजह से, पतंग फरोशों की वजह से, क्योंकि कुछ अरसा पहले हम पतंगबाजों को भी पकड़ रहे थे, ऐसे ही हम पतंग फरोशों को भी पकड़ रहे थे, और छोटे बच्चों को भी पकड़ रहे थे जो कि घरों में एक नॉर्मल धागे से काइट बना के उड़ा रहे थे, उनका भी पूरी नजर आ रही थी कि पतंग उड़ रही है, तो फौरन से हम उनको जो है वो लॉकअप कर देते थे। अब अगर देखा जाए, आप ये कर रही हैं तो सेफ्टी बेशक आप जितनी मर्जी कर लें, नहीं होगी। एक तो मजदूर तबका इससे परेशान हो जाएगा, दूसरा जो अल्लाह ना करे कोई इस तरह के खौफनाक और अलमनाक हादसात रूनमा होते हैं, तो उस हवाले से उनका अजाला कौन करेगा? जिनके लिए पतंगबाजों की वजह से, जिनकी पतंगों की वजह से जाने गई हैं, उनके घर के लिए आपने जो बसंत ओपन की है, उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जख्म है। एक और चीज, उनको ये याद आएगा, उन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है जो कि बहुत हाई लेवल के हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। और वही हम बात डिस्कस कर रहे हैं, मजदूर तबका जो बहुत बिल्कुल नॉर्मल घरों से है, जो सुबह जाते हैं अपनी शाम को मतलब उसी पैसों से अपना घर चला रहे हैं, तो वो उनके लिए ज्यादा मुश्किल है। तो ये आप बताएं कि क्या ये होना चाहिए? मैंने तो अपना ओपिनियन बता दिया है, बट आप मुझे बताएं कि क्या ये ऐसा होना चाहिए? एक्चुअली मुझे बसंत का, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो अभी फर्स्ट टाइम ये सुन रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने भी कोई बसंत नहीं देखी। अच्छा, तो मेरा नहीं ख्याल कि बसंत होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे खबरें हाईलाइट होती हैं, पाकिस्तान है और यू नो रूल्स रेगुलेशन जुडिशल सिस्टम ऑल आर जीरो, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अब उस वजह से हमारा जो निज़ाम है वो बहुत एक डाउन पे चला गया। अब देखा जाए अगर पतंगबाजी का, तो पतंगबाजी अगर लोग कर रहे हैं 3 दिन सिर्फ आप उन्हें दे रही हैं, 3 दिन के बाद जो भी करेगा सिर्फ है ये 3 दिन, सिर्फ ये एक दिन जब होती थी ये बसंत जाने जाती और थी, उसके लिए भी बहुत सारे नुकसानात होते थे, और ये तो बहुत ज्यादा है 3 दिन। मैं इसलिए 3 दिन कह रही हूँ कि हुकूमत ने अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशंस की हैं, ऐसे ही प्रेप हुए हैं वो, उन्होंने ये कह दिया है कि हम सेफ्टी रॉड्स दे रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों पे बाकायदा लगाए जा रहे हैं। अब जिन्होंने बाहर नहीं निकलना वो तो डिस्टर्ब है, क्योंकि जिन्होंने डेली बेसिस पे कमा के खाना है। दूसरी बात ये कि अगर उस दौरान भी ये हादसा हो रहे हैं तो ब्लेम जाएगा गवर्नमेंट को। तो एक 3 दिन चले गए जो गवर्नमेंट ने दे दिए, जाहिर है जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया, क्योंकि हमारा सारा निजाम जो है वो गवर्नमेंट के बलबूते पे चलता है। आपको इस चीज पे एग्री करना चाहिए। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, बड़ी मजे की बात है और ये बहुत देर बाद इस पे राय अमल किया गया है, बट हम लोग हंसी आती है इस तरह की कवानीन बनाने पे कि ये हमारी मरियम नवाज साहिबा, मतलब अगर आपने कोई कवानीन बनाने हैं तो स्टार्ट से स्टार्ट लेना। अब ये बहुत एक दकियानुसी सी बात है कि गाने वो जो बहुत पंजाबी गाने जिस पे साउंड चलते हैं शादियों पे, और आप देखिए स्टेज पे जाएं तो यही साउंड चलते हैं, और अगर किसी रिक्शा ड्राइवर या किसी बस ड्राइवर ने ये सॉन्ग सुन लिया तो उन पे ये बैन कर दिया। आपको अगर बैन ही करना था, क्योंकि आपकी साल हर साल हुकूमत गवर्नमेंट रही है, तो तब क्यों ख्याल नहीं आया जिन्होंने ये
ये गाने लिखे, जिन्होंने इजाद किए, जिन्होंने ये प्रोड्यूस किए, डायरेक्ट किए, इवन ये गाए गए, तब किसी को ख्याल नहीं आया। अब कोई रिक्शा ड्राइवर सुन रहा है तो उस पर ये बैन कर दिया। मैं तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात समझती हूँ, मुझे बहुत हंसी भी आ रही है कि ये क्या किए हैं। अच्छा, सबसे मजे की बात, आपने चलो सॉन्ग्स की बात कर दी है, तो मैं आपको बता दूं अभी तो जिन गानों पे बैन किया है, चले उनमें वो कह रहे हैं कि जुबानी अल्फाज हैं, वल्गैरिटी है, उनके मायने कुछ और निकलते हैं। तो शुरू से ही वल्गैरिटी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। जब ये इजाज़त दे रहा है दुरुस्त है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एक मजे की बात बताऊं, लाइक आपको पता होगा कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले लगा लें कि कोई भी अगर साउंड सिस्टम लगा रहा है, अपने रिक्शे में लगा रहा है, गाड़ी में लगा रहा है, उन पे पर्चे हो रहे थे। लाइक वो जिसने सॉन्ग, वो एक बंदा सॉन्ग सुन रहा था जहां जड़, और यू नो उस पे भी पर्चा बहुत ज्यादा, और वो एक इतना को फनी मीम्स थी उनपे, एक फनी मोमेंट कह लें कि हमारी हुकूमत जो है ना हमें लाफ्टर थेरेपी भी देती है, कुछ चीजें इस तरह से कर जाती है कि हम लोग हंसने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर वल्गैरिटी ये चल रही है, अब नजर आई है, ठीक है, हम ये कह देते हैं कि दे रहा है दुरुस्त है, चले अब उन्होंने वो कर दी है, लेकिन स्टार्टअप से आपने क्यों नहीं लिया? यही तो बात मैं राइटर्स हैं यार, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स हैं जिन्होंने इस पे एक्ट किया है, या अगर ही बात पे मैं डिस्कस किया है, मैंने अर्ज किया है ये अरीज कि देखो आपकी हुकूमत तो साल हर साल रही है, कैमरा बैन कर सकता था, तब भी आपकी मतलब मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो तब थे, अगर मरियम नवाज साहबा नहीं आई थी तो तब उन्हें क्यों ये ख्याल नहीं आया कि जिन्होंने ये गाना लिखा उसको पकड़ा जाए, जिन्होंने डायरेक्ट किया उसको पकड़ा जाए, और जिन्होंने ये 10 लोगों के सामने या 20 लोगों के सामने ये गाया है जिस सिंगर ने, अब उनको क्यों नहीं, उनको तो आप बुला के पार्टियां देते हैं और उनके लिए बहुत स्पेशलिटी जाहिर करते हैं। तो ये बेचारे जो रिक्शा ड्राइवर या फिर जो भी इस गानों से या इन चीज़ों से वो अपना रिस्क कमाते हैं, तो उन पे बैन कर दिया। आज भी आप जाके देखें गाँव में शादियाँ हो रही हैं तो इन्हीं गानों पे रक्स चल रहे हैं और हल्ले गुल्ले हो रहे हैं। और हमारे लाहौर में देख लो कि हम स्टेज की तरफ जाके देख लें तो वहाँ पे भी यही गाने और बहुत ज़्यादा वर्गैलिटी चल रही है। मैं आपको बताती हूँ कि गवर्नमेंट की जानिब से इनको बैन किया गया। थिएटर्स के हवाले से बात करें, थिएटर्स पर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि आपने स्टे इन लिमिट रह के आपने अपना जो है ना वो काम करना है। बिल्कुल। अब देखा जाए कई एक्टर्स इस तरह भी हैं, उनमें से एक्ट्रेसेस हैं जो वल्गर काम करती हैं क्योंकि हमारा जो निज़ाम है उसमें वल्गैरिटी देखी जाती है। वल्गैरिटी को इतना को हाईलाइट किया जाता है सोशल मीडिया पे कि वो बंदा ऑटोमेटिकली रातों रात फेम ले जाता है। अब उसमें ये आ जाता है, या तो हम जो लोग देखते हैं उनको हाईलाइट ना करें, उनको लाइक्स ना करें, शेयर ना करें, कमेंट्स ना करें, ऑटोमेटिकली सामने आ जाते हैं अरीज। अगर हम अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोल के बैठे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें, क्योंकि ये बहुत आम है, बहुत फेमस है, लेकिन मेरा ख्याल है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हुकूमत को ये वल्गैरिटी लग रही है सॉन्ग्स पे, वो सॉन्ग्स वाकई ही है वल्गर ही है। आप उनको फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, आप उनको सुन नहीं सकते, क्योंकि जिस बंदे ने सुनना ना, अगर फैमिली में बैठा हुआ है, कभी वो एक वीडियो आ गई है तो फौरन से सबसे पहले म्यूजिक हम लोग कम करते हैं कि अगला बंदा सोचेगा तो क्या सोचेगा, ये इस तरह के सॉन्ग सुनते हैं। हम इस बात पर डिस्कस नहीं कर रहे कि ये क्यों लगाया, हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं उन लोगों के एक्शन स्टार्ट से क्यों एक्शन नहीं लिया। वही ना, कैमरा स्टार्ट पे बैन कर सकता था, इन लोगों की गवर्नमेंट थी, क्योंकि इन लोगों ने कोई 5 साल हुकूमत नहीं की, माशाल्लाह साल की, हमारे पैदा होने से पहले की है, यही है ना। हाँ, यू कैन से और तब से इनकी गवर्नमेंट आ रही है। तब ये छोटी छोटी चीजों को आप एक उस पे लगाते या उस तरह सेट बाय सेट 1 बाय 1 करते, तो अब तक ये बहुत चीजें सेट हो चुकी होती, अपनी जगह पे सही होती। अब लोगों को नई चीज नहीं लगती है कि ये क्या कर दिया। जैसे स्टार्ट में मैंने भी यार आलिया, जो आज की हमारी जनरेशन है वो इतनी को फास्ट है, उन चीजों का हमें नहीं पता। हमारी अगली यंग जनरेशन है, उनको यूथ है, उन्हें मालूम है, क्योंकि मोबाइल ने बच्चों को इतना को एडवांस कर दिया, इंटरनेट ने इतना को एडवांस कर दिया कि आप कोई भी अगर वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो वल्गैरिटी से कम नहीं आती। आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो सबसे पहले अगर ऐप वो फेम में जा रहा है ना, तो वो उस वल्गैरिटी की वजह से ही जा रहा है, उसी वजह से। तो इस पे तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि एक साइट्स बना दें, उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएं कि बच्चे इस चीज को ना देखें। फिर वो आप एक स्टार्टअप से स्टार्ट ले लें, यहाँ से कर लें कि जो वल्गर एप्स आ रही हैं, कुछ इस तरह की साइट्स बनी हैं, उन पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगवाएं। टिकटॉक पे अब इतनी ज्यादा बेहूदगी है, इतना ज्यादा वहाँ पे एक सोशल मीडिया जितना है ना वो सारे का
सारा गंदा हो चुका है। अच्छा देखिए, आप गंद दिखाओगे तो देन ही वो आपका जो है ना, हाँ, हमारी आने वाली नस्ल जो है वो वही चीजें कैप्चर करेंगे और वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। देखें, आउट ऑफ कंट्री के लोग तो चलो कैमरे के सामने डांस करके ये टिकटॉक बना रहे, हमारी पाकिस्तानी जो नई उभरती हुई लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज की जाने वाली हैं, तो वो ये काम कर रही हैं। उनपे क्या उनकी फैमिलियां या उनपे कोई बैन नहीं लग रहा कि ठीक है एटलीस्ट हमारे पाकिस्तान में तो ये चीजें ना हो ना। पाकिस्तान का मतलब था पाक सरजमीन, लेकिन अब इसमें सिवाय वल्गैरिटी के कुछ नहीं, जुबानी चीजों के। आप फैमिली में बैठे हैं, आप कोई इस तरह से चीज देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वो एक गंद सा आ जाता है। ऐसे ही है। कुछ लोग मैंने इस तरह के देखे हैं फैमिलीज में कि वो वही गंद एक दूसरे को जुगत लगा रहे होते हैं। वो अच्छा, हमारी जो उज़मा बुखारी साहिबा है, उन्होंने खुद कहा था कि नसीबो लाल जो है वो उनकी फेवरेट गुलकारा हैं। अब उन्होंने ही बैन किया है, तो अगर फेवरेट गुलकारा हैं तो फेवरेट गुलकारा ने सबसे ज्यादा सॉन्ग्स भी जुमानी ही गाए हैं। फेवरेट गुलकारा को फिर पकड़ना था ना, मतलब आगे आप देखें, आर्टिस्ट बंदा है, उसको जो मिलना है उसने उसका कमाना है, उसी का खाना है, पकड़ना होने चाहिए। जिन्होंने लिखे हैं, जिन्होंने डायरेक्ट किया, कंपोज किया, म्यूजिक बनाया, उनको पकड़ना चाहिए। अच्छा अरीज, आते हैं फिर हम बसंत की तरफ ही, बसंत के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या अब आने वाले टाइम में क्या ये बसंत जारी रखनी चाहिए, या कि ये एक लास्ट, आपका क्या नजरिया है कि ये एक लास्ट बसंत होगी या फिर कि ये आती रहेगी? ये तो यार गवर्नमेंट्स पे हमारी डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारी जो आवाम है ना, उसको यू कैन से पंजाबी में कि वो लाई लग गया, वो किसी को भी अपना ड्यूरेशन पूरा करने नहीं देती। और अभी बसंत नहीं आई तो लोगों को इतनी अपनी जानों की टेंशन पड़ी। अगर ये 3 दिन ये बसंत रह गई तो कितने लोगों का नुकसान होगा। एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो है वो इतना कुछ ज्यादा प्रेशियस है, इतना कुछ ज्यादा आप समझ लें कि वो क्रिटिकल है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बसंत की बात करें कि होनी चाहिए या नहीं, तो अगर मेरी गवर्नमेंट होती तो मैं तो भाई बिल्कुल भी बसंत ना होने देती। अच्छा, यानी कि आपका भी यही ओपिनियन है कि आप नहीं चाहते कि नहीं होनी चाहिए बसंत? जिस काम की वजह से लोगों के लाखों लोगों के घर उजड़े हैं, डिसेबल जाने तबाह हुई हैं, वो एंजॉयमेंट कोई एंजॉयमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको ये जख्म ताज़ा करता है, उनकी याद ताज़ा करता है। हम लोग एक स्पेसिफिक दिन मनाते हैं ना कि सानिया IPS हुआ, हम 14 को खराजे तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं, सुर्ख सलाम देते हैं, लेकिन जो इस हादसे का शिकार होते हैं कि हमने कभी वो दिन मनाया? आप 16 दिसंबर को ही लगा लें कि वो इस्लामाबाद में जो बच्चों वाला वाकया हुआ है ब्लैक डे का, तो वो एक बच्चों का वाकया हुआ। जब भी दिसंबर 16 आता है वो APS, तो APS पेशावर का जो हाँ बिल्कुल, और हर माओ के अंदर से जैसे जख्म ताजे होते हैं, वो सारी तकलीफ जाग जाती है, वो इस एक डेट की वजह से। ठीक है, तो ये तो जो पीछे गुजर गई हुई है हमारी ये जितनी भी बसंत है या जिनके साथ ये वाकया, तो अभी ये जो इतने साल बाद आई है, अभी बसंत नहीं थी तो इतने लोग अपनी जानों से अभी से स्टार्ट हो गया। और जिन माओं की गोदें उजड़ी हैं, भाई चले गए हैं, बहनों के सुहाग उजड़े हैं, वो अब इस डेट को क्या फील करती होंगी? उनके लिए मैं वही कह रही हूँ कि जख्म ताज़ा है यार। सीधी सी बात है कि मरने वाला एक दिन मरता है, पिछले हर रोज मरते हैं, बार मरते हैं, एक एक सेकंड मरते हैं, एक एक मिनट में, एक एक पल मरते हैं। ये बड़ा हो जाता है कि एक बंदा चला गया है, लेकिन उसके पिछलों से पूछें, अब जब आपने डेट्स अनाउंस किए हैं तो उनपे क्या गुजरी होगी? हाँ, कि भाई इसी काम की वजह से वो तो मतलब कोस रहे होंगे ना उस काम को, पतंगबाजी को भी कोस रहे होंगे। ये फिर क्यों आ गया? अगर ये बंद था, हमारे घर उजाड़ के हुकूमत उसको मना रही है, अब 3 दिन के बाद कोई बंदा मना रहा है तो हुकूमत ने उसको पकड़ के जेल में रख देना है। फिर वो अगेन हम लोग माशाल्लाह हमारा जुडिशियल सिस्टम उसमें जरा उस पर बड़ा उसका एक हाथ है, हमारा निजाम पुलिस का आपको पता ही है। फिर अगेन वही होगा, लिया दिया और फिर छोड़ दिया। अभी कल मेरे से कोई डिस्कस कर रहा था कि ये अगर ये जंग कह रहा था वो तो कि ये जंग बंद थी ना तो उसको बंद ही रहने देते। इसको आपने चिंगारी क्यों दी, इसको क्यों छेड़ा? अब फिर एक नया वलवला, नया जोश न्यू जनरेशन में जाग गया, लोगों में इतना को यार खौफ पैदा हो गया था। लोग पतंग नहीं बना रहे थे, नहीं उसको बेच रहे थे, नहीं उड़ा रहे थे, इस वजह से कि हमारी गवर्नमेंट इनएक्शन है। अब गवर्नमेंट ने 3 दिन के लिए परमिशन दे दी है, 3 दिन के बाद अगेन वही फिर आज गया काम के, अगेन वो गुड्डी चढ़ा ली,
जेल में चले गए, फिर वापस आए, फिर वही काम किया। अब ये जो एक चीज खत्म हो रही थी आवाम के अंदर से ना, लोगों बच्चों में से पतंगबाजी का कोई कंसेप्ट नहीं था, भूल गए बच्चे। द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ आर पंजाब गवर्नमेंट वो ये है पतंगबाजी की इजाजत देना। और उसके साथ फिर आप ये देखो, पतंगबाजी एक त्योहार है, अगर आपने मनाने की इजाजत दी है आलिया, तो फिर हर बंदे का अपना अपना राइट है उसको मनाने का। कोई किसी की तस्वीर लगा रहा है, कोई किसी का कुछ बना रहा है, तो इस पे मसला नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की जानिब से वाज़ेह तौर पे कर दिया गया। एक तरफ उज़मा बुखारी कहती हैं कि इसको गैर सियासी रहना चाहिए, तो फिर आपने क्यों इस चीज को हाईलाइट किया कि किसी भी मेंबर की जो है ना वो पिक्चर नहीं लगनी चाहिए, पिक्चर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब के नाम से काफी जो है ना वो कार्ड्स बन चुकी थी। अरे लोग कारोबार भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लाखों से कार्ड्स बिक रही हैं, डोरें बिक रही हैं, और उन्होंने उसको खान साहब के नाम पे जो बनी है, अब उनके तो पैसे बेच गए। फिर आपने ये इनका मेजर ये कि मतलब एक सुई इनको लग गई कि इन्होंने कह दिया कि नहीं हम इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद कह रही हैं, उज़मा बुखारी साहिबा खुद कहती हैं हर बंदे की अपनी चॉइस है। उन्होंने खान की तस्वीर लगाई या हमारी मरीम नवाज साहिबा की पिक्चर लगाई है, अब उन्होंने तो अपना कारोबार करना है। जब आपने इजाजत ही दे दी है कि आपने डोरे भी उन्होंने बेचनी और अपने पतंग भी बेचनी, और उनकी तो कोशिश है कि वो बहुत अच्छी कारकर्दगी डिमांड है वो उसी तरीके से, फिर आप लोगों ने ये भी डिमांड कर दी कि इस पे कोई पिक्चर नहीं बने। अब आप समझ नहीं आते कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। अब ये चाह रहे हैं कि लोग ये त्यौहार मनाएं, लेकिन इनके अंडर जो लिमिटेशंस हैं उनमें आपके लिहाज से मनाएं। अब इनके लाहौरी आपको पता जिंदा दिलान लाहौर है, और वो अपनी मर्जी से ये त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे। अगर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आलिया, कि जिस तरह कुछ लोग खान के लिए बड़े क्रेज हैं, आपको पता है जब उनको अरेस्ट किया गया था दुनिया में क्या हालात हो गए थे, मुल्क जाम हो गया था। आपको क्या लगता है कि अगर लोग पिक्चर्स लगा लेते हैं, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना एक आइडियलाइज्ड है, अगर नूंदी को कोई अवाम उनको सपोर्ट करिए तो उनकी भी लगा लेगा, कोई मुशर्रफ की, कोई कुछ, मतलब हर बंदे ने अपनी अपनी आइडियल की लगानी है। आपको क्या लगता है कि अगर हवाओं में खान साहब की तस्वीरें नजर आती हैं तो हुकूमत का क्या रिएक्शन होगा? अरीश, मैंने अभी ये मतलब अर्ज किया है कि देखिए, आप लोगों पे अपना कायदा कानून रख सकते हैं, उनके दिलों पे नहीं रख सकते, उनके दिमाग पे नहीं रख सकते, उनकी जुबान पे नहीं रख सकते। मैं वही कह रही हूँ कि सोचता है, कोई ये करता है तो आई एम टेलिंग यू कि अगर कोई ये करता है तो व्हाट विल बी द रिएक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब? डायरेक्टली उसको बंद कर देंगे क्योंकि जिनकी हुकूमत है उनकी मर्जी से ना चला जाए, जिसका दौर है, जिसका सिक्का चलता है उसी का नाम चलता है। नाज़रीन, प्रोग्राम को देखा आपने और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसके मेन जो वजूहात हैं कि ये पसंद नहीं होनी चाहिए, हमारी अपनी ओपिनियन है। आपकी क्या ओपिनियन है वो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पतंगबाजी अगेन वही कि यार खूनी खेल है, नहीं होना चाहिए। अगर ये रुक गई थी, इसको खत्म हो गया, इसको खत्म कर दिया गया था, इसको दोबारा से हवा नहीं देनी चाहिए थी। ये तो फिर आग लगा के खुद फिर साइड पे होने वाली बात है कि दोबारा अगर कोई करेगा तो फिर ऑब्वियसली वो सजाएं भुगतने के लिए भी तैयार हो जाए। तो नाजरीन, अपनी भी राय का इजहार करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, क्योंकि ये होनी चाहिए थी पसंद या नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही एक नए प्रोग्राम, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।